Assalamualaikum dear friends. I hope you are all right and welcome again in our video classes of science. Today we are going to learn science of 8th class and it will be my first lecture of science. And this is our first lecture of science and unit number 1. The name of this unit is sustenance of individual. Sustenance of the individual. Sustenance means food. Sustenance means food. Okay. First, we are going to define what is food. Anything which is eatable. Anything which is eatable and provide us energy. Anything which is eatable and provide us energy is called food. Okay. I hope you understand it very well. Anything which is present in anything which is eatable and provide us energy, it is called food. So food. And then we are moving to next word, nutrition. Food and nutrition both are quite similar. But what is different? Actually, a slight difference between them. Nutrition. Eating of right food is called nutrition. Eating of right food is called nutrition. Actually, when you think about the foods, you have many ideas and many foods actually around us present, but they are not give us energy and nutrients and as well as vitamins, proteins. Many of them are actually junk foods. So many of foods we have to be and we should avoid from these kind of foods like our junk foods. Okay, like our soft drinks are very not provide us energy in our daily life. So we are moving towards energetic foods. Yeah. Energetic foods are those which provide us like nutrients like proteins, vitamins and fats. These are actually the energetic foods and we have to and we must eat them in our daily life. Okay? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आज हम मूव करते हैं इसके बाद रेस्पिरेशन की तरफ। रेस्पिरेशन जो है आपने देखा होगा कि या फिर आपने सुना होगा और आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़कर भी आए हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो सांस लेने के अमल को कहते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन में जो हमारे जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमारा नोज है, लंग्स हैं और हमारी नॉस्ट्रिल्स हैं और हमारा जो मेन किरदार होता है इसमें वो हमारी ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे यहाँ हो गया रेस्पिरेशंस के ऑर्गन्स का। ठीक है, तो ये अमल जो है एक बड़ा सा अमल है, तो इसको हम आने वाली क्लासेस में मूव करके हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें हम जो सिस्टम्स हैं सारे वो अलग अलग से आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे कैसे जो है हमारी लाइफ में काम करते हैं। तो उसके बाद हम मूव करते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक और आवर नेक्स्ट nutrition. Types of nutrition are actually two main types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. These two main kinds of nutrition and all organisms actually take benefit from these kind of nutritions and all organisms are relevant from these kind of materials and these kind of nutrients which are being present in their body. Autotrophic nutrients are those nutrients which actually this kind of topic or this kind of actually तो बेटा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें हमारे जो है वो प्लांट्स आते हैं। ठीक है, इसमें जो है हमारे वो प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स अब उनको ऑटोट्रॉफिक क्यों कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक वर्ड का मतलब ये होता है कि खुद ब खुद, क्योंकि प्लांट जब अपना खाना बनाते हैं तो उनको किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एक चीज़ होती है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है प्लांट्स को सूरज की रोशनी से खाना बनाने में हेल्प करती है और उस अमल को हम यहाँ तक उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसाइंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, साइंथेसिस मीन्स टू मेक। फोटोसाइंथेसिस अ मैकेनिज्म by which plants make their own food by the using of sunlight। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और प्लांट्स हमारे पास यानी कि एक ही जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स हैं वो अपनी न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टाइप है वो है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ये भाई वो न्यूट्रिशन टाइप है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, जैसे कि हम हैं,
हमारे अलावा एनिमल्स हैं वो अपना खाना हासिल करने के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनको सर्वाइव रहने के लिए उनके पास कोई भी क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती है जिसकी हेल्प से वो अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस डिफाइन करेंगे, और दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर गेटिंग देयर फूड फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे इसको डिफाइन, इसमें हम आते हैं कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स, ये सारे जो जानदार हैं वो इसमें आते हैं, और कुछ में पैरासाइट्स हैं और कुछ इंसेक्टिवोर्स हैं, वो हम आगे जाकर आपको बताएंगे कि वो कैसे होते हैं डिटेल में आगे जाकर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो ये वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में होगी, वहाँ से आप बार बार देखकर इसको जज करेंगे, और अगर भी सवाल होगा तो हम आपको उसका बराबर आंसर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।